السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں شاہ بھائی؟ الحمدللہ. ارے شاہ بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اس تعلق سے آپ کے کیا عقیدہ ہے؟ مطلب میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کہاں ہے. ہاں اللہ کہاں ہے سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. نہیں مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں جی کس بنیاد پہ سوالات کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پر سوالات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ کا عقیدہ جاننا چاہ رہا ہوں میں. اللہ کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں تو میں آپ کے بارے میں جان سکتا ہوں. آپ اپنا عقیدہ پہلے بیان کر دیجئے پھر میں بیان کر دوں گا. اللہ اکبر. سوال کرنے پہ سوال کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں بھی اپنا موقف بیان کروں گا. یہ ایک بات بتائیے سوال کرنے میں سوال ہی اصول ضابطے کہاں سے بنا لیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا تھا تو کہ اس لونڈی نے بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ پہلے تم بتاؤ. اچھا ایک بات بتائیے یہ جو آپ نے بات کہی لونڈی کے معاملے میں. جی آپ نے بات کہی نا. جی یہ بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر لونڈی سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے رسول پہلے آپ بتائیں بعد میں بتاؤں گی. اچھا ویسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے عزیز اگر آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ کہاں ہے اس کے تعلق سے بتا دو. آپ نہیں پتا ہے تو مجھے بتا دو. مجھے پتا نہیں ہے میں بتا دوں گا آپ کو. ایک بات بتائیں. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو جانتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے 5 منٹ متعین کریں پھر میں بات کروں گا. جی آپ جو بات کہنی ہے 5 منٹ متعین کریں. جی 5 منٹ میں بولوں گا 5 منٹ آپ. ارے اتنا بیلنس کہاں ہے 5 منٹ کہاں متعین کرنے کا وقت ملا. نہ اس طرح سے نہیں. دیکھیے آپ مجھے بولنے ایسا کرتے ہیں 1 منٹ آپ بولیں گے 1 منٹ میں بولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہ اس طرح سے تو ٹائمنگ میں گھڑی لے کے نہیں بیٹھا ہوں. تو پھر کیسے 5 منٹ کیسے متعین کریں گے؟ یا تو یہ ہے جب میں 5 منٹ کیسے متعین کریں گے میرے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے 5 منٹ متعین کرتے ہیں صاحب بھائی. 5 منٹ متعین کرتے ہیں آپ کا مقررہ وقت کے مطلب اس سلسلے میں. تو آپ مجھے کال بیک کریں انشاءاللہ 5 منٹ متعین کرتے ہیں. نہیں ایک بات بتائیے آپ کیوں میں پوچھنا عقیدہ سنے تو عقیدہ آپ کو پوچھنا ہے مجھے تھوڑی پوچھنا. میں نے آپ کو فون لگایا میں تو 5 منٹ متعین کر ہی نہیں رہا ہوں. میں تو 5 منٹ متعین کر ہی نہیں رہا ہوں. نہیں تو آپ ایک بات بتائیے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ آپ کیسے بات کریں گے مجھ سے. ابھی میں نے کچھ کہنا چاہا آپ نے حدیث جاریہ سنا دی بول کے نکل گئے. اب میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں آپ نے بولنے نہیں دیا تو مجھے کیسے خلاف بولو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سناؤں گا نا آپ کو میں. نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں حدیث کے خلاف ہے. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کہاں ہے تو فوراً آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ پہلے. تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے نا معاملہ. اگر تمہیں نہیں معلوم صاحب بھائی تو مجھے بتا دو کہ مجھے معلوم نہیں پھر میں بتا دوں گا آپ کو. پھر سنو گے تم یہی بکواس رہتی ہے تم لوگوں کی عادت غیر مخلدوں کی. تم شروع ہو جاؤ سنو. میں ان کا عین جو لفظ آتا ہے وہ کن معنوں میں آتا ہے؟ جی کن معنوں میں آتا ہے مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جو معنی میں آتا ہے کس معنی میں آتا ہے؟ اللہ اکبر. اب پھر شروع ہو گئے. اب میں سوال کر رہا ہوں تم سے. میرے سوال کا جواب تو دے تو میں بھی بتاؤں گا پھر کس معنوں میں آتا ہے انشاءاللہ. ایک بات بتاؤ تم نے آپ سے پوچھا شاہ بھائی میں نے آپ سے پوچھا اللہ کہاں ہے. سنو بات سنو پہلے. اگر آپ کو معلوم ہے تو بتا دو بھائی کہ بھائی مجھے معلوم ہے اور نہیں معلوم ہے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. مجھے آواز لگ گئی کیونکہ جو اللہ ماشاء اللہ یہ سب شروع کر دیا مجھے اندازہ ہو گیا تم ہو. پہلی بات تو یہ ایک بات بتاؤ تم تو کہتے ہو مقلد جاہل ہوتا تمہارا خیال ہے تو پھر شہاب علی سے پوچھنے کی ضرورت. ٹھیک ہے دوسری بات تمہارا یہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے کچھ اصول و ضابطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے فون اٹھا کے منہ پہ لگا لیا اس کے بعد اگر تمہیں بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے گروپ میں ایڈ کرتا ہوں. سنو پہلے اس طرح کی بھنکر جو ہے نا سنو فون پہ تم شروع ہو گئے ادھر سے میں شروع ہو گیا. پہلی بات جب تیرا عقیدہ سن تمہارا عقیدہ میں جانتا ہوں اللہ بذاتی عرش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے حدیث جاریہ میں اللہ عرش کے اوپر ہے. ارے سنو نا پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ چاہتے ہو
मुफस्सल तरीके से अगर बात करना चाहते हो तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में बात करूंगा। सुनो पहले, लेकिन सुनो पहले, मेरा इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं था जितना तुमने बना दिया, पूरी दुनिया में घुमाना है उस सवाल को। मैंने पूछा अल्लाह कहाँ है, तुम बता देते भाई अल्लाह हर जगह है, तो बात खत्म थी। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम कौन मुनकर हदीस बात करो, कौन दहरिया बात करो, कौन बात करो, मुझे क्या मालूम। अच्छा ये बात बताओ, एक बात बताओ, क्या दहरिया या मुनकरीन हदीस जब तुमसे सवाल करेगा तो तुम उसको जवाब नहीं दोगे क्या? सुनो ये ज़ाब्ता कहाँ से लाए, ये उसूल कहाँ से लाए शाहब भाई, अगर सुनो तो अगर ये उसूल लाए कहाँ से शाहब भाई, ये तो बताओ पहले कि भाई सवाल करने वाले को जानना चाहिए पहले कि वो मुनकरीन हदीस है या दहरिया है, कौन होता है। सुन एक बात बता, एक आदमी कुरान को से हुज्जत मानता है, कुरान से दोगा तो हदीस से देगा। साहब भाई आपका इकराम में बोलने नहीं दे रहा मुझे ना, इकराम में मुस्लिम अच्छा तुझे इकराम में मुस्लिम ये सिखाता है किसी को फोन उठा के मुंह उठाए जब चाय मिला लो, अल्लाह यही सिखाया जाता है। अल्लाह, और जिससे चाहे पूछ लो, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं था तो मुझसे इतनी देर तुम्हें बात करते हुए हो गई, इतनी देर में जवाब दे भी देते। एक बात बता, कुरान तो एक ऐसा है कि अहले इल्म से पूछ लो, तो मुझे जवाब दे देते ना, इतनी देर में जरूरत क्या थी इधर उधर घुमाने की बात। सुन तलहा, सबसे पहले बता कि तू किस बुनियाद पर मुझे फोन किया है? मैं इस बुनियाद पर फोन किया है साहब को कि भाई साहब जो है देवबंदियत का बड़ा दिफा करता हुआ नजर आता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर, तो मैंने उस सिलसिले में जानना चाहा कि उसका अकीदा क्या है, वाकई में मोमिन वाला अकीदा है क्या है। तो एक बार बता, तो तुझे मैं कैसे जानूंगा कि तेरा क्या अकीदा? तूने तो अपना अकीदा नहीं बयान किया, पहले तू अपना बयान करता। अरे तो मैंने पूछता शाह भाई, मेरा ये सुन्नत का अकीदा है, कुरान की दलील है। सुनो ना शाह भाई, मैंने मना किया, मैंने मना किया, मैंने मना किया कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करूंगा। सुन तो एक बार बता, अगर तेरा ये अकीदा है, तेरा अकीदा तूने हदीस जारिया सुना दी, क्या दूसरी अहादीस नहीं है जिसको मैं मतलब तो मेरा अकीदा मुस्लिम जो हदीस दलाइल बाद में देंगे, दलाइल बाद में देंगे, पहले मैं चाह रहा हूँ कि बुनियादी जो उसूल है अल्लाह कहाँ है वो बताओ पहले। सुन तलहा, तू अपनी औकात पे आ गया, जब मैंने तुझसे अकीदा पूछा तूने हदीस जारिया पे आ गया। हदीस जारिया तू पेश की थी। अच्छा अकीदा, अच्छा हदीस जारिया तू पेश की थी, तूने अपना अकीदा बयान किया, तूने अपना अकीदा बयान किया। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं अकीदा मैंने अपना अकीदा बयान किया। आपने पूछा था पहले मुझसे, किसने पूछा था? किसने पूछा था? मुझसे पूछा था ना, अल्लाह कहाँ है साहब, तूने पूछा था, मैंने पूछा था। जी मैंने क्या पूछा, तूने अपना अकीदा बयान किया, तुमने ये कहा अपना अकीदा बयान किया। नहीं सुनो पहले, तुमने ये कहा कि अपना अकीदा बयान करो। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, तुमने कहा कि पहले अपना अकीदा बयान करो, तुम्हारा क्या अकीदा है। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लोंडी से जो सवाल किया था, लोंडी ने पलट के नहीं कहा था पहले अपना अकीदा बताओ आप। अच्छा एक बात बताओ, उस लोंडी ने पूछा तो फिर मुझसे तूने पूछा? अगर तू हदीस के खिलाफ है तो मुझसे क्यों पूछा, ये बता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेवकूफ तू हदीस के खिलाफ जा रहा है। तो फिर तू तो हदीस के खिलाफ खुद शुरू बिस्मिल्लाह तूने हदीस के खिलाफ की थी। कौन सी बिस्मिल्लाह पूछा? कौन सी बिस्मिल्लाह? तूने मुझसे पूछा, तूने जो बिस्मिल्लाह की है ना, तूने बिस्मिल्लाह, जब मैंने तुझसे पूछा अकीदा का है, तेरा क्या है, तू हदीस जारिया सुना, अल्लाह के रसूल मैंने ये कहा, सुनो पहले, जब तुमने मुझसे मेरा अकीदा पूछा तो मैंने कहा ये तुम्हारी जो बात है हदीस के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लोंडी से पूछा था तो लोंडी ने पलट के ये नहीं कहा था अल्लाह के रसूल पहले आप मुझे बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। ये नहीं, ये तो तुम्हारा उसूल ही हदीस के खिलाफ है। वो दूसरी बात सुनो पहले साहब भाई सुनो, उसके बाद में मैंने ये कहा पूछने वाले कौन, सुनो तो मुकर्रर कर लेते हैं, मैं भी इंशाअल्लाह अपना मौक़िफ़ बताऊंगा, तुम भी अपना मौक़िफ़ बताओ। सुन, दो हैसियत है। रसूल सल्लम रसूल से उन्होंने पूछा, तुम उससे पूछ रहा किस हैसियत से? मुझे आलिम समझ के पूछ रहा किस बुनियाद पर? अरे मैं मोमिन हूँ, मोमिन के एतबार से पूछ रहा हूँ। मोमिन कि मेरा भाई सामने वाला नहीं। अच्छा तुम मुझे मोमिन समझ रहा है, झगड़ा किस बात का? जब मेरा अकीदा सही है, मोमिन समझ के बात कर रहा, झगड़ा किस बात? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरा सामने वाला जो मुसलमान भाई है वो ये कहता अपने आपको मैं भी मोमिन हूँ, तो मैं देखता हूँ उसका अकीदा सही है या नहीं है, मोमिनों वाला अकीदा भी है उसका या नहीं। सुन तो तला, एक बात बता, मैं तेरे बारे में कैसे जानूंगा तू मोमिन है क्या? तू तो अपने बारे में इल्म गैब रखता हो, मैं तो तेरे बारे में नहीं रखता ना। नहीं मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे शाह भाई कि भाई वाज़ेह हो, तुम भी बताओ। मैंने आपसे कहा ना,
कि जब तुम अपना मौक़िफ़, ठीक है साहब भाई, तुम अपना मौक़िफ़ बयान करने में दोनों बताएंगे जब वाज़ेह हो जाएगी बात किसका अक़ीदा दुरुस्त है। मैंने ये नहीं कहा मैं अपना अक़ीदा नहीं बताऊंगा, मैंने शुरू में ही तुमसे कहा मैं अपना मौक़िफ़ भी बताऊंगा, आप अपना मौक़िफ़ भी बताएं। मैंने दो चीजें, जब तुमने हदीस जारिया पेश की, मैंने आइन के माने किस किन चीजों में इस्तेमाल होता है, हदीस जारिया। दूसरी बात मैंने कही थी, तुम्हें उसूल सिखा रहा था, हदीस की रोशनी में तुम्हें उसूल सिखा रहा था, तुम्हें उसूल भी नहीं आते। अगर उसूल सिखा रहा था तुम्हें, रोशनी में उसूल सवाल करता है तो पलट कर उससे ये नहीं कहा जाता तू भी बता पहले फिर बाद में मैं बताऊंगा। ये कौन सा, कहाँ से उसूल चुरा के लाए तुम? अच्छा, मैं तो इसी वजह से पूछा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल पूछा है वो ऐन जो लफ्ज है वो किन किन मानों में इस्तेमाल होता है, इसी मैं पूछूंगा। अलिफ या नून ये ऐन है, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो मेरे भाई। क्लियर नहीं, देखो एक बात बता तलहा, बात तुमने शुरू की है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा तो मैंने शुरू किया है क्या है, तो पहले अकीदे पे देखो, शुरू में कोई भी होता है, देखो हकीकत बात ये है कि देवबंदियत अल्लाह के अकीदे, यानी अल्लाह कहाँ इस अकीदे से बिल्कुल बातिल और गुमराह और जहमिया वाले फिरके में है। तुम्हारा अकीदा मालूम नहीं है, इसलिए ये घुमा फिरा रहे हो बातों को। अगर मालूम हो तो फौरन बता देते। एक बात बता दो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, 5 मिनट तुम बात करो, 5 मिनट मैं बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कॉल बैक करो, 5 मिनट बात करते हैं। सुनो, कॉल बैक करो, मुझे मैं करता हूँ, मेरे मोबाइल में इतना बैलेंस नहीं, तुम कॉल बैक करो, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। 5 मिनट बात करते हैं। अगर कॉल में तेरे पास बैलेंस नहीं था तो मुझे क्यों फोन किया? मैंने तुम्हें पूरी दुनिया को घूमने के लिए कोई कहा था? अरे मैंने तुमसे पूरी दुनिया में घूमने के लिए कोई कहा था? मैंने तो पूछा अल्लाह कहाँ है, घूमने मालूम था बता देते, नहीं मालूम था मुझे बता दो। किसी से बात करना, सुनो, किसी से बात करने का पैमाना ये है कि देखो साहब अली मेरा अकीदा ये है, जो भी आपकी अकीदा, आपका अकीदा कि आप बयान करो, ठीक है? अरे दलाइल बराइन से बात करें। अरे बिल्कुल बेवकूफ शख्स है तू, अकल नहीं है तेरे पास। मैंने कहा मैं अपना मौक़िफ़ भी बयान करूंगा, आप अपना मौक़िफ़ बयान करो पहले। नहीं तो क्या मौक़िफ़ क्या जो ताक पे रख के मुझसे बात करेगा? हदीस जारी ऐसे सुना रहा, मौक़िफ़ सुनाए नहीं तो मैंने हदीस की रोशनी में तेरा उसूल बातिल था, मरदूद बातिल था तेरा उसूल। तेरा उसूल हदीस के खिलाफ था, इसलिए मैंने उसूल के तौर पे तेरे को हदीस पढ़ के सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया तो उसने लोंडी नहीं पलट के नहीं कहा था पहले आप बताओ अपना अकीदा, बाद में बताऊंगी मैं। ये जो तुमने सवाल किया ऐन अल्लाह, मैंने यही कहा कि ऐन किन किन मानों में आता ताकि मुझे क्लियर हो जाए। अरे मैंने कब कहा? मैंने ये नहीं इनकार कहा कि भाई मैं ऐन पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा, लेकिन पहले जो मैंने असल सवाल किया तुमसे कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, उसकी दलील क्या है, तो वो तो तुमने बताया कि मेरा अकीदा क्या है, अल्लाह है या नहीं है। तुम तो मुझे लगता है अल्लाह का इनकार करते हो यार, तुम मुझे लगता है अल्लाह का पता ही नहीं तुम्हें अल्लाह कहाँ है, फिर मोमिन कैसे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अशहदु